लाहौर में जाली आमिल काले इल्म से इंसानों की जानें लेने लगा। 2 अफराद को जिंदा जला दिया गया। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? इस्लामपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? टेप बांधना, जलाकर डेड बॉडियों को। ये वो मुल्ज़म है? ये वही मुल्ज़म है ज़ीशान। क्या नाम है जी? ज़ीशान जी। किसी की जान ले ली आपने? जी साहब जी, गलती से काम हुआ है। गलती से काम हुआ है? 8 साल बच्चे की जान ली है साहब जी, ਉਹ ਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਪੈਟਰੋਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਫੜੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਜ਼ਾਹਰਲੀ ਸਬਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ? ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਉਹਦਾ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ, ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਕਰਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦਮ ਕਰਾਉਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੀ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਫੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਲਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਬੁਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਟਾਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਉਖੜ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਾਫੀ ਕੁਸੋਨੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ? ਤੌਬਾ ਨਾ ਉਜ਼बिल्ला ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਰਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਲਾਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 2 ਨੇ। 2 ਕਿਤੇ ਨੇ? 2 ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। सर जी और भी कोई है कि 2 ही हैं? हाँ, एक डेड बॉडी है जो रक्षा ड्राइवर को, ये तकरीबन 16 तारीख का वकूआ है। जो अपने टी नंबर 4 पे ये डेड बॉडी मिली थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन की है। इसके साथ और भी 3 आदमी हैं, इंशाल्लाह उसको भी। अच्छा, उस कत्ल में 4 बंदे हैं? 4 बंदे। आपने रिक्शा ड्राइवर को कैसे ट्रैप किया, फिर उसे आके कत्ल कर सब जी? दिया? जौन सा बच्चा फोत हुआ है ना, उसका एक बड़ा भाई है, वो भी मेरे साथ था, ठीक है ना। उसका नाम है कासम, ठीक है ना। एक जाहिद है, मेरा नाम ज़ीशान है। पहले मैं उनके घर बैठा हुआ था, ठीक है ना। बच्चे के पहले ये काम हुआ है। बैठा हुआ था, जो सा जाहिद है ना, उसने कासम ऊपर से आया घर से ट्यूशन जाने के लिए और जाहिद ने रोका उसे कि हमने अभी नहीं जाना, हमने काम जाना है। जाहिद का प्लान था, उसने मुझे बोला और मैंने और जाहिद ने कासम को बोला है कि हमने काम जाना है, लेकिन मारने का हमारा कोई नतीजा नहीं था। प्लान क्या था? ये प्लान था कि रक्षा खो के लेके आना, रक्षा वाले को लाएंगे, रक्षा छीन लेना है जी। रक्षा लेके आएंगे और इधर ला के रक्षा छीन के उसे भगा देंगे, मार के भगा देंगे, ठीक है। लेके आए हैं उसे, लेके आके तो तकरीबन इधर से हम 4:30 बजे गए हैं। मैं कासम जाहिद 4:30 बजे इधर से गए हैं, बाहर आए हैं मेन पे, बाहर आके रक्षे पे बैठे हैं
ताज कंपनी वाले पुल के नीचे उतर के उधर से बैठ के कोट अब्दुल मालिक गए हैं। उधर 15-20 मिनट हम बैठ रहे हैं, उधर से रिक्शा लेके आए हैं। एक रिक्शा वाला कॉल पे लगा हुआ था। रिक्शा लेके कहाँ से आए हो? रहते कहाँ से थे? रिक्शा कहाँ से लेके आए? 4 कितने नंबर किलोमीटर दूर था वो? 4 नंबर टी से गए हैं सर हम, तो कोट अब्दुल मालिक गए हैं। कितनी दूर है? तकरीबन इधर से बनता है आने जाने का सफ़र 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। जी साहब जी, उधर से लेके आए हैं। रिक्शे वाले को बोला है कि हमने 4 नंबर टी से सामान लेके आना है। सामान ला के और शेखुपुर रोड पे जो सी कॉलोनी नहीं बनी है मोटरवे के साथ, उधर मस्जिद वाले चौक के पास लेके आना है। मैंने और जाहद ने बोला है, तो जो सा कासम है वो साथ है हमारे, वो मोबाइल पे कॉल पे बात कर रहा था और कासम जाहद ने बोला है कि मोबाइल भी है, तो इसीलिए हम पक्के हो गए। और उसने बोला है कि मैंने बोला कितने पैसे भाई, तो कासम जाहद ने बोला कितने पैसे भाई, उसने बोला 1500 रुपया। तो जाहद ने बोला कम करो, तो उसने बोला फाइनल 1300 लूँगा। तो मैंने तो जाहद ने फिर मिलकर बोला कि हम भाई 1000 रुपये देंगे। तो उसने बोला चलो ठीक है। फिर उससे पूछा कि रस्सी है, तो उसने बोला नहीं भाई। तो जाहद ने, तो मैंने और कासम ने बोला है कि कासम बाद में बोला है पीछे से, हम बोलने लगे तो उसने बोला है कि रस्सी उधर से ले लेंगे तो सामान बांध लेंगे। इधर लेके आए हैं। जब ताज कंपनी वाले पुल पे पहुंचे हैं तो यासर उसका भाई जाहद का, कासम का चाचू, तो उसको कॉल की है जाहद के कहने पे मैंने कि उस मकान पे आ और चाबी लेके आ। चाबी मेरे पास थी ठीक है ना। उधर हमारे पहुंचने से पहले यासर उधर पहुंचा हुआ था, 15-20 मिनट पहले पहुंच गया था वो। शाम मगरिब की अजान हो चुकी थी। ये सारी प्लानिंग आप कर रहे हो रिक्शा छीनने के लिए? जी साहब जी। अच्छा, जैसे कि वैसे बता रहा हूँ। उसे लेके आए ताज कंपनी से, उसने मुझे रिक्शा पकड़ाया, वो फ़ोन पे लग गया, पता नहीं किसके साथ बात कर रहा था, लड़की थी लड़का मुझे नहीं पता। ऐसी बातें करता करता वो मेरे पीछे बैठा है और हम लेके आए। हमारे आने से पहले यासर उधर खड़ा हुआ था। उसके बाद यासर को, उस लड़के को यही पता था कि हम इसके घर से सामान उठाने आए हैं, उसको नहीं था पता कि ये हमारे साथ मुलव्वस है। तो चाबी ली है, चाबी मैंने अपनी जेब से निकाली है, निकाल के और दरवाज़ा खोल के रिक्शे वाला बाहर ही बैठा हुआ, हम सब अंदर चले गए हैं। उसको यासर ने बोला है कि भाई अंदर आ जाओ, यासर ने जाहद ने, तो जाहद पेशाब करने के लिए चला गया। वापसी आया तो मैंने उसे बोला कि जाओ बोतल लेके आओ यार। बोतल के लिए मैंने 100 रुपये दिया, कोक की 1.5 लीटर बोतल। वो कह रहा 100 की नहीं आएगी, 200 दिया मैंने उसे अपनी जेब से दे दिया। और बाद में वो चला गया। वापसी आया तो उन्हें सब ने बोतल पी है, तो मैं वाशरूम में बैठ गया हूँ। पेशाब किया, पेशाब करके मैं बाहर आके अंदर कमरे के अंदर जिधर ले गए हैं, भैया आ गए अंदर रिक्शे वाला, उसे लेके आए अंदर, बेड पे जाके बैठाया है। साथ पीछे कासम बैठा है, जाहद साइड पे खड़ा हुआ था और मैं साइड पे कंध के साथ बैठ गया था। ठीक है ना। फिर क्या इशारे हो रहे थे आपस में? बता रहा हूँ सर। वो ना ऐसे ही बैठे, कासम पीछे बैठा हुआ था। उसने, लड़के ने मुझे इससे यासर से बातें वगैरह की हैं, कुछ इसने की हैं कुछ उसने की हैं। इधर ऐसे बैठे हुए थे और सिगरेट मांगी है मुझसे उसने, तो मैंने सिगरेट दी है। और सिगरेट मांगी रिक्शे वाले ने। अच्छा। मोबाइल पे बातें कर रहा था तो सिगरेट मांगी है। और कासम ने मुझे इशारा किया है कि मैं अब क्या करूं। मैं नहीं, सिगरेट पी रहा है, अभी कुछ भी नहीं कहना, ठीक है। मारने का हमारा प्लान नहीं था। जब सिगरेट पी ली है तो बाद में यासर से उसने पूछा क्या करना है, तो यासर ने ऐसे इशारा किया है कि मुंह पे कपड़ा डाल दो। तो कासम ने पीछे से मुंह पर कपड़ा डाला है। कपड़ा डालते ही उसकी चीज़ों से ना दबाई गई थी बहुत ज़्यादा, दबा दी जी। यासर ने ऐसे लपेटा पा के तो उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ी, उसने रोला डाला है। तो बाद में मुझे यासर ने बोला कि खड़ा हो, तो जाहद ने उसकी टांगें जो से वो बांध दी थी, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने हाथ बांधे हैं, तो मुझे इन्होंने कहा, तो मैंने पकड़ा है उसे, मैंने भी पकड़ा है। उसने मुझे इधर दंदी काटी है, दंदी काट के मैंने छुड़ाया है। तो उसने फिर मुझे धक्का लगाया, मैं कंध में लगाऊँ, तो उसने रोला काफ़ी डाला है। काफ़ी डालने के बाद उसकी जो से ये चीज़ ऐसे दबाया ना जब, तो उसकी तब भी ना एंड हो रहा था, तब भी सांस का कम हो रहा था। तो ये जाहद जो था इसने टेबल लपेटी है मुँह पे, काफ़ी इधर तिकर लपेट के उसका सांस एंड हो चुका था। मुझे बाद में बोला कि इसके टेबल लपेटो, तो फिर मैंने मुँह पे लपेटी है, तो वो मर चुका था साहब, ठीक है। इधर नाखून उसके लगे हुए थे। इसी वजह से वो जब मरा है तो हम सब डर गए। डरने के बाद फिर ऐसी तरह बैठ के हैं, तो फिर इन्होंने बोला कि क्या करना है अब। तो यासर ने तो शीले ने और नहीं कासम तो जाहद घर से रस्सी लेके आए हैं, तो दोबारा उसे बांध के साथ वाले कमरे में रखा है। अगले दिन हमने सब्जी उसे उधर से निकाला है। कैसे निकाला वहाँ से? मोटरसाइकिल पे लेके आए हैं, यानी कि उसे बोरे घर से कपड़े उठाए हैं। कपड़े उठा के मैं और जाहद ने कपड़े उठा के, शीला हमारे पास दोबारा नहीं आया, वो डर के बहुत ज़्यादा गया था, वो हमारे पास नहीं था आता। कपड़े ले गए हैं, बोरे में जाके कपड़े रखे हैं। एक बोरा और लिया उधर से लेके, उधर जो सा कंबल था ना साहब, उसमें लपेट के बोरे में डाला है और कपड़ा उसे बोरे रख के तकरीबन 3-4 बजे तो अपने इनके घर आ गए हैं। इनके घर रोटी खाई है। शाम को यासर काम से आया है
तो इसने बोला क्या किया है, इसे बोला कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो इसने बोला उसको कुछ करो।